Good morning students, welcome back to the class 8. As we have already completed the topics of water, conservation of waters, and in today's lecture we will be discussing about the topic natural vegetation and wildlife. This topic will also be divided into two parts. One is vegetation and another is wildlife. We will be discussing this in two parts. One is related to the distribution of natural vegetation. Another is conservation of natural vegetation and wildlife will be divided into two parts. In today's lecture, we will be discussing about what is natural vegetation and what is wildlife. As in your textbook, it has been given that some school students were visiting an exhibition on handicraft and articles in the exhibitions were collected from the different parts of the country. Mona picked up the bag and exclaimed, "This is the beautiful handbag." "Yes, it is made up of jute," the teacher said. "Do you see those baskets, lampshades and chairs? Those are made up of canes and bamboos." Here it has been said clearly that certain things which are being produced by the organization or whatever we are using in our surrounding is came from directly or indirectly from nature itself. It has been said in that way. In the eastern and the northern eastern humid regions of India, bamboo grows in plenty. Here it has been said that in India the humidity is very high. Because of that, the bamboos are grown very rapidly high and available very well in our region. So it has been said that Jesse was excited to see a silk scarf. सिल्क स्कार्फ जो होता है, कपड़ा जो है वो उसको देखना है. See this beautiful scarf, and she saw she ultimately said that it's a beautiful scarf. The teacher explained that silk is obtained from the silkworm. Yes, silkworm is ultimately a micro, we can say that one insect who gives a silk from his worm. So it is ultimately been found in mulberry trees. The children understood that the plants provide us many different things produced in which we use as day-to-day life. In day-to-day life, we are using all kind of things in our environment. So basically, what is natural vegetation? Natural vegetation and wildlife are coexisting. They found in the narrow zones. They are connected with the different atmosphere, lithosphere and hydrosphere concept. If they are linked between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere, then we can call it as biosphere. In biosphere, every living being is interrelated and interdependent on each other for the survival purpose. This much has been given in your textbook. हम लोग लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर को जब जोड़ते हैं तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं बायोस्फीयर. बायोस्फीयर के बेस पर हम ये भी कहते हैं कि जो भी लिविंग बीइंग है वो कोई भी क्यों ना हो, ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल, एवरीथिंग, दे आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ देमसेल्फ. सो दिस मच हैज़ टू बी क्लियर्ड हियर. Vegetation and wildlife are valuable resource. Yes, your valuable resources are vegetation and wildlife. We are ultimately depending on them. If we talk about vegetation, plants provide us timber. Then animals give us shelter, produce oxygen we breathe in. Then protect soil for essentially of growing crops. These kind of things are came from shelter belt. And it helps in storing our underground water. अगर आपको मैं वापस से इसको रिपीट करते हुए कहूँ तो प्लांट्स के थ्रू हमें टिम्बर मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है, एनिमल्स के साथ साथ में हमारा काम हो जाता है, फिर बाद में ऑक्सीजन हमें मिलता है, सॉइल फर्टिलिटी रहती है और साथ साथ में हमारे अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी प्रिजर्व रहते हैं. वेरएज ट्रीज़ के थ्रू हमें फ्रूट्स भी मिल जाता है, नट्स मिलता है, लैटेक्स मिल सकता है, फिर ट्रैपेटिन ऑयल मिल जाता है, गम, मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, everything is essential in our life. So everything is possibly available because of vegetation.
Here it has been said that in a numerable use of plants as you can add so more, जितना ऐड करना चाहो उतना ऐड कर सकते हो। प्लांट्स के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ऑक्सीजन गेन करते हैं, स्टीम से हम पेपर बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद में आता है वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ इसके अंदर एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज एक्वेरिक लाइफ, ये सब कुछ काउंट होता है वाइल्ड लाइफ में। वाइल्ड लाइफ के थ्रू हमें मिल्क, मीट, हाइड्स, वुड्स ये सब कुछ मिल जाता है। इंसेक्ट्स के थ्रू हमें बीज के थ्रू हनी मिल जाता है। फिर पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर भी हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट इंसेक्ट्स। और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने का जो काम है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ एन इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम को डिकम्पोज करने वाले बर्ड्स होते हैं। जो बर्ड्स हैं लाइक वल्चर क्या करते हैं, जो डेड बॉडीज़ हैं जो डिक्लेइंग की तरफ जाते हैं उसको वो कंज्यूम कर लेते हैं और कंज्यूम करने के बाद में वो एनवायरनमेंट को क्लीन करके रखते हैं। ये वल्चर्स अल्टीमेटली आपके एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हेल्प ज़रूर रखते हैं। साथ साथ में बड़े या छोटे कोई भी एनिमल हो वो हमेशा आपके इकोसिस्टम को बैलेंस बना के रखते हैं। सो ये टॉपिक हम लोग देख रहे थे। जब आगे बढ़ते हैं तो अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन है क्या एग्जैक्टली? इधर क्या होता है कि जो वेजिटेशन जो है वो एक्चुअली प्राइमरी डिपेंड करता है मॉइस्चर एंड टेम्परेचर के ऊपर। द मेजर वेजिटेशन जो है वो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा रीजन्स के आसपास में जल्दी आसानी से मिल जाता है। हैवी रेनफॉल जहाँ पे होगा वहाँ पे ह्यूज ट्रीज़ भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और उस चीज़ के इधर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वाटर सप्लाई का। यहाँ पे मॉइस्चर जो है वो डिक्रीज रहेगा, साइज़ ऑफ द ट्रीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होंगी और डेंसिटी जो होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। शॉर्ट स्टर्निंग ट्रीज जो है या ग्रासेस जो है वो मॉडरेट रेनफॉल में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। थॉर्न स्क्रब्स जो है या स्क्रब्स जो है वो ड्राई एरियाज़ में जहाँ पे लो रेनफॉल होती होगी वहाँ पे आपको मिलेंगी। एक चीज़ याद रखना, हैवी रेनफॉल जहाँ पे होगा वहाँ पे घना जंगल होगा। जहाँ पे मॉडरेट रेन होता है या मॉडरेट रेनफॉल होता है वहाँ पे घास आपको जल्दी दिख जाएगी, झाड़ बड़े बड़े नहीं मिलेंगे। लेकिन जहाँ पे रेगिस्तान हो वहाँ पे कम बारिश होती है, ठीक है। और हर प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ में डिपेंडेंट है, ये आपको याद रखना है। टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइज ऑफ मोजेस एंड लीचेंस। ये बर्ड्स आपको दिए हुए हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट ब्रॉडली क्लासिफाइड है दो हिस्सों में, एक तो एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा है डेसिडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है? एवरग्रीन फॉरेस्ट में कभी भी झाड़ पूरी तरह से क्लीन अप नहीं हो जाता। दे डू नॉट लीव देयर लीव्स एज शेड। पत्ते जो होते हैं वो ज़मीन पे नहीं गिर पाते या सूख नहीं जाते, तो ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एवरग्रीन फॉरेस्ट पूरे सीज़न में ग्रीनरी ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद में जब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर साल में एक बार मॉइस्चर लूज़ होता है या लीव लूज़ हो जाता है। यहाँ पे टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है वो डिपेंड करता है आपके डिफरेंट लैटिट्यूड, टेम्परेचर, लोकेशन पे, और वहाँ का वाइल्ड लाइफ भी जो है वो इसी एनवायरनमेंट के साथ में जुड़ते हुए आगे बढ़ता है। आज के वर्ल्ड में अगर हम लोग 2 सेंचुरी बैक की बात करें यानी 20 ईयर्स बैक की बात करते हैं तो 20 ईयर्स बैक में इतनी ज़्यादा आबादी हुआ नहीं करती थी, और आबादी नहीं होने की वजह से वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस होता था, वहाँ पे हेल्दी एनवायरनमेंट होता था। लेकिन 20 ईयर्स करंटली अब इन प्रेजेंट देयर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अस बिकॉज द ट्रीज आर बीन कट वेरी रैपिडली, the forest are in very less numbers, animals are getting vanished, the environment has been totally changed. Because of that, the environment has to make sure that certain natural vegetation and wildlife has to be conserved and it has to be protected by us. Conservation of natural vegetation and wildlife will be seen in next video. That's it for today. Thank you.